रणवीर सर एक बार एक एड फिल्म पे भी मिला था. He told me that do one thing, become an AD on a film set. जो लर्निंग आपको बिहाइंड द कैमरा मिलती है वो तो आपको किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलती. एक फ्रेम है जिसमें 14 बड़े एक्टर्स हैं, जिसमें पंकज त्रिपाठी सर है, रणवीर सिंह सर है, so many other actors, big names. I think just by looking at them itself, I was learning so much. Everyone knew about Diljit Dosanjh. So when he came to me, he just told me that, Haji, आप बहुत मेहनत करते हो. देखना आप एक दिन बहुत आगे जाओगे. And that thing stayed with me. लाइक आपने भी दिलजीत के साथ काम किया है. आई जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव, योर पीओवी ऑन अ थिंग कि दिलजीत की अभी जो अपकमिंग फिल्म आ रही है उसमें पाकिस्तानी एक्टर को लेके बहुत बवाल मचा हुआ है. हाउ डू यू सी दिस? बात करते हैं फिल्म में ऑन स्क्रीन की दिलजीत दोसांझ के साथ. हाँ जी. हाउ वाज दैट फीलिंग? It was fantastic, sir. In fact, दिलजीत पाजी और मैं तो हम लोग 10 साल पहले एक सेम जिम में वर्कआउट करते थे. Okay. प्रदीप भाटिया सर, who is also his coach, उनकी जिम थी तो मैं वहाँ पर जाता था. एंड उनके और मेरे हमारे फैमिली रिलेशंस ही हैं तो मैं उन्हीं के जिम में गया. आई यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट. आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस since after my school days. I used to be a very healthy kid. So I started working out at a very younger age. So मैंने जब वो शुरू किया, प्रदीप सर यूज्ड टू ask दिलजीत पाजी to see me कि देखो कितना डेडिकेशन के साथ में ये बंदा कर रहा है. So he used to see me work out and someday, some days we passed on a smile to each other. But एक दिन वो actually आए मेरे पास में. And by then he was already a known name in the household. Everyone knew about Diljit Dosanjh. So when he came to me, he just told me that, Haji, आप बहुत मेहनत करते हो. देखना आप एक दिन बहुत आगे जाओगे. And that thing stayed with me. मुझे सच में मतलब वो दिल में रह गई वो मेरे बाद. एंड उसके बाद में मैंने वो सेट्स भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारे. आई थिंक उसके बाद की जर्नी तो बहुत ही ब्यूटीफुल रही. लिटिल डिड आई नो दैट ऑलमोस्ट 6 years after that incident, I think I am going to be having the same film in which he is the lead and I'm playing one of the pivotal characters. So yeah, that was like a full circle moment that happened. एंड जब मैं मिला उनसे बुदापेस्ट में हम लोग शूट कर रहे थे और शूट करते करते हम लोग जब वर्कआउट कर रहे थे, सो ही मेट मी इन द जिम एंड ही टोल्ड मी, पाजी मैंने कहा था ना. याद था. Yeah man, he remembered everything. So I was so happy during that time and he made it so comfortable for me to act in front of him. He's such a brilliant actor, everyone knows that, and it was my first time. So I was very particular about everything that I was doing and he was so chilled out because he knows his job in and out. पंजाबी है ऊपर से. पंजाबी है. So the most important thing was that he made it very very easy for me. I was able to express myself very freely in front of him. In fact, एक बार मुझे एक extra take चाहिए था so that I can better myself as an actor. That person could have said that अरे किसी और को बिठा दो इधर और ले लो. He sat for my take so that I can get everything in response. I can get a good response from him. And my director, Mr. Ravi Chhabria, he asked him that whether you'd be okay doing that because I want one more with him. So he also requested him, I also requested him, and he's like, request you kar lenge baji. So yeah, it was very good. It was like very beautiful from within. I felt so good that he gave me that opportunity to do करेक्ट. that. अगर एक इतना बड़ा इंसान जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है वर्ल्ड वाइड, अगर वो इतने छोटे छोटे जेस्चर्स में इतना आपको कंफर्टेबल करवा देता है, बहुत बड़ी चीज़ है बॉस. Absolutely. ऑफ स्क्रीन कैसे हैं दिलजीत? प्रैंक करते हैं, गाना वाना गाते हैं? उनकी इंस्टाग्राम वीडियोस तो देखे ही होंगे आपने. No, he's a very private person to be honest. वो ज़्यादा Okay. मतलब अपनी एनर्जी बहुत ही प्रिजर्व रखते हैं. वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं. जिस दिन उनका मूड अच्छा रहता है उस दिन शायद वो अचानक से गाना गाने लग जाएंगे, अचानक से रील बनाने लग जाएंगे. उनके जो व्लॉग्स जो इतने फेमस हैं वो तब से बनाते हुए आ रहे हैं. So yeah, he used to just do it every now and then with every actor. He was so good and एक कॉमिकल एलिमेंट के लिए वो जो दादा होते हैं, जो स्पॉट दादा होते हैं, उनको भी डाल लेते थे वो वीडियोस में, फॉर द कॉमिक रिलीफ एंड स्टफ. सो या, ही इज अ वेरी डिफरेंट ह्यूमन. Off camera, he's so with himself and he's a very private person. On camera, he just comes with an energy Bang that is on. unmatched. So yeah, his energy really helped me perform better. एक तरफ दिलजीत पाजी, दूसरी तरफ बमन ईरानी, रत्ना पाठक शाह, अपने आप में चलते फिरते इंस्टीट्यूट. Yeah.
उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो बहुत बार जैसे जब एक बहुत सीनियर इंसान साथ में होता है, दो तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। एक तो वो कि वो सिर्फ अपना किया, अरे सही से करो करके हो गए। दूसरा वो आपको बहुत सिखाते हैं। इन दोनों के साथ कैसा था? इन दोनों ने मुझे दोनों ने ही नहीं सिखाया कुछ भी। इन दोनों ने अपना अपना काम अच्छे से किया और मुझे अपना काम अच्छे से करने दिया। एट अ पॉइंट जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अटक रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना दैट यू आर अ न्यू एक्टर, यू वांट टू कीप ट्राइंग समथिंग न्यू बिकॉज आपको वो टेक वापस नहीं मिलेगा। पुराने एक्टर्स के साथ भी होता है ये। अच्छा, सबके साथ होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मुझे तो अपना सबसे बेस्ट देना था बिकॉज मुझे पता था कि मुझे शायद ये टेक वापस ना मिले, तो उससे पहले मैं जितना प्रेप था सब कर लेता था। सो पवन ईरानी सर के साथ में मैं रिहर्सल कर रहा था और करते 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 मैंने जो चीज़ मैंने सीखी थी, प्रैक्टिस की थी, मैं वही चीज़ बार बार कर रहा था। उन्होंने बोला कि वाई आर यू डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ट्राई अ न्यू अप्रोच। ठीक है, तू अगर उस चीज़ को बांध के रख लेगा एंड इफ यू बिकम वेरी स्ट्रिंजेंट विद इट, वो चीज़ बहुत मैकेनिकल हो जाएगी, विच ही वाज सो राइट अबाउट। ही टोल्ड मी दैट ब्रीथ, लीव सम स्कोप फॉर मैजिक टू हैपन, फॉरगेट द प्रेप, जो था वो हो गया, बी इन द मोमेंट। उनकी इस एक स्टेटमेंट ने मेरा पूरा का पूरा एक्टिंग पर्सपेक्टिव बदल दिया सर। और वो सीन जो हमारा हुआ है, मेरा और बमन सर का, वो सीन देखिएगा, दैट वाज आफ्टर ही यू नो सेड दीज थिंग्स टू मी एंड I think that was one of the best scenes of the entire film that I did. So yeah, he got the best out of me. रोंगटे खड़े हो गए अभी बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे। I mean it was so beautiful sir. मैंने तो सच में बहुत सीखा उस इंसान से। और जहाँ तक बात आई रत्ना पाठक शाह मैम की, स्ट्रिक्ट हैं क्या वो? मैंने सुना बड़ी स्ट्रिक्ट हैं यार। नहीं यार, नहीं है वो। She just likes to mind her own business. That's the only thing. So there's a difference between someone being very strict and someone who minds her own business. So she's someone like that, and she's a no-nonsense person, and I love that thing about her. So बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा that she loves singing. Okay. She loves singing and she loves singers. And back then I didn't know that I'll be a professional singer anyway. But मैंने उन्हें बोला था कि मैम मैं गा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ प्लीज गा। So we were just sitting you know in a room, just enjoying our pizzas. सुमित व्यास सर भी थे, वो भी थे। मैंने गाना गाया और उन्होंने बोला कि यू नो अर्जुन, एक्टिंग का तो पता नहीं बट सिंगिंग ही ऐसी चीज़ है जो हमें डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट करवाती है। सो अगर तुम ये कर सकते हो ना, then you're one of the few chosen ones who are blessed with this. Please work on it. And little did I know that I will become a part of such a big music label and they'll sign me as their exclusive artist. So yeah, I'm very very happy that they. जब ये सब चीजें हो रही होती हो, पिंच करते हो कि is it like real or what? मतलब उस टाइम पे जो रहता है मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, मैं तो बस अंदर ऐसे खुश होता रहता हूँ कि यार इन्होंने एक ऐसी बात बोली है that I'm going to cherish for the rest of my life. True. But yeah, मतलब होता है ऐसा कि am I in a dream or something or am I actually just looking at them or seeing them? So yeah, मतलब पिंच विंच करने की तो मेरी आदत नहीं है, but I somewhat have this habit of is it happening for real? Like I ask myself that question, but of course I don't let anyone know about this. But अंदर ही ये सवाल चल रहा होता है। हाँ। But yeah, I think that's the beauty of it. That's the beauty of इन it. सारे एक्टर्स, इन सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ और फिल्म की बहुत चर्चा में, वो है आपकी केमिस्ट्री बनीता के साथ। Okay. Yeah. So I'll tell you how it happened. Banita loves her food. Okay. She's a big time foodie. Okay. I also love my food, but since I'm a mesomorph, now mesomorph is a person who can put on really fast and lose really fast. That's my body type. So It's a blessing. It's a beautiful blessing, yeah. God bless. So I, in this film, had to almost look like malnourished because this person is always on a run. उसे मुश्किल से है ना वो खाने के उसके लाले रहते हैं, you know. वो भागता रहता है, he's constantly on a run, and plus he is you know very financially challenged. So that's what had to be seen, you know, and that's why I had to eat less. So मैं पूरे टाइम पे I was on a very strict diet. जितनी भूख लगती थी उससे almost आधा खाता था मैं, which also you know was worked in my favor because I looked so sharp on the screen. So yeah, that worked in my favor. So yeah, but मेरे ही सामने जहाँ पर मैं सैलेड खा रहा हूँ, वहाँ पर बनीता छोले भटूरे खा रही है, मेरे सामने कुलचे खा रही है, and उसे कुछ नहीं हो रहा. She is blessed. वो कुछ भी खा लेती है. She remains like that, and I was so jealous of that.
So she used to make fun of me that I'm having this, you be on your salad, and I'm like, yeah, Okay. whatever. Just wait for the film to get over. I'll give you a tough competition on that. So एक bond वहाँ पर बन गया था. आपने भी दिलजीत के साथ काम किया है. आई जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव, योर पीओवी ऑन अ थिंग कि दिलजीत की अभी जो अपकमिंग फिल्म आ रही है उसमें पाकिस्तानी एक्टर को लेके बहुत बवाल मचा हुआ है. हाउ डू यू सी दिस एज अ एक्टर और एज अ व्यूअर, दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग? I think it's safe to say that I would like to, avoid this question. I wouldn't want to answer this question because I am not in a position to comment or say anything about it. So yeah, can we move on to the next one? Sure. Thank you. ठीक है. आपकी अगर मैं काम की बात करूँ, इसमें एक फिल्म 83 भी है. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आपने 83 में बिहाइंड द कैमरा है ना? हाँ, करेक्ट. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैमरे के पीछे होना, सामने रणवीर सिंह जैसा कैरेक्टर है जो एनर्जी किंग कहलाता है. So I would say सर कि जो लर्निंग आपको बिहाइंड द कैमरा मिलती है वो तो आपको किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलती. एक फ्रेम है जिसमें 14 बड़े एक्टर्स हैं, जिसमें पंकज त्रिपाठी सर है, रणवीर सिंह सर है, so many other actors, big names. I think just by looking at them itself, I was learning so much. वो चीज़ काफ़ी थी मेरे लिए. And it was beautiful to have Ranveer sir on set. In fact, Ranveer sir से मैं एक बार एक ad film पे भी मिला था. Okay. And he told me that do one thing. Become an AD on a film set. Go back to your acting institute. Rework your understanding towards acting. Because जब तुम acting institute में रहते हो तो knowledge सिर्फ किताबी होती है. But जब तुम actually जाते हो film set, that's when you actually get to learn the practical workings around it. उन दोनों का combination मिला के that's when you start auditioning again. And after that incidents, we directly met on the sets of 83. And he said that now you get me a book and a pen, okay, and we will sit with how you're supposed to go about your journey. वो अलग बात है कि वो बाद में busy हो गए थे, but I had my book and pen ready. But every now and then he just kept on giving good advice about how do I go about it. So yeah, I think all these people have just come as a blessing in my life. My interaction with Ranveer sir has been fantastic. मुझे पंकज त्रिपाठी सर ने ये बताया था कि जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारे कैरेक्टर का जो अंडरस्टैंडिंग है विद एवरी फिल्म वो बढ़ती रहेगी. तो पढ़ो, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो या जिन चीजों से हम दूर भागते हैं वही चीज एक्चुअली काम आती है. अगर पढ़ाई से दूर भागते हैं तो आई थिंक पढ़ाई काफी काम आती है. So yeah, needless to say, I wasn't one of those students who I wasn't one of those students who was bad in studies. I was in the top 3 rankers of my college. Okay. And I don't know how. Maybe because I was so chilled out and I understood everything so beautifully, and plus I had a good command over my language. So I was able to rewrite those answers in my own words, and that's what people, I think, teachers liked. They liked my examples, the way I related that theory to the examples. So yeah, these things have only helped me so. So yeah, whatever I'm doing right now, it's also because of all the good things I've gotten to hear from all these legends that I've worked with. आपका जो recent project है डिटेक्टिव शेरगिल, उसमें आपका जो कैरेक्टर है वो deaf and mute है. तो can you present yourself or can you give your introduction in that way only? बता दीजिए अब हमें थोड़ा सा इसका. So मैंने बोला है, hi, my name is Arjun and you're watching me on Galata. ओह वाओ, कितना इजी है ये करना. ये जो साइन लैंग्वेज है, जैसे हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं वो ऐसे कर दिया, अच्छे लग रहे हो, ऑल द बेस्ट बोल दिया, बेसिक. बट जब आप उस चीज़ को ऑन स्क्रीन ले जाते हो, कितनी मेहनत है उसके पीछे. और क्या इसकी वजह से टेक्स बढ़ते हैं? क्योंकि एक होता है आपको डायलॉग्स याद रखना है, एक होता है आपको एक्सप्रेशंस मेंटेन रखना है, और एक होता है आपको प्रॉपर साइन लैंग्वेज भी देना है. हाउ हार्ड इट इज? डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हो. मुझे पता था कि मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा टेक्स होंगे नहीं और मैं ज़्यादा टेक्स मांग भी नहीं पाऊंगा. तो मुझे पता था कि मुझे अपना पूरा का पूरा प्रेप बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है. एंड व्हेन आई वाज डूइंग इट, इवन बिफोर द साइन लैंग्वेज कोच केम ऑन बोर्ड, मैंने अपना होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग किया था सर. मैंने साइन लैंग्वेज के वीडियोस देखे थे बहुत सारे. ISL, दैट इज़ इंडियन साइन लैंग्वेज, मैंने उसकी ABCD सीखी. मैंने ASL की सीखी, दैट वाज अमेरिकन साइन लैंग्वेज. मैंने BSL की सीखी, दैट वाज ब्रिटिश साइन लैंग्वेज.
मैंने इन सारी चीज़ों के साथ में अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था बिफोर सीताराम सर, द इंडियन साइन लैंग्वेज कोच हु केम ऑन बोर्ड एंड टॉट मी. When he came on board, he's like, अरे तुम्हें तो बेसिक्स तो ऑलरेडी आते हैं. So it became easier for him to actually take me ahead with the entire process. So yeah, it was very easy for me, to be honest, because I was hungry for work, and during that time when I got such a beautiful role, I just went all guns blazing. So yeah, it was very easy for me. So yeah. ISL, ASL और BSL क्या फ़र्क है? जैसे हम लोग अगर नॉर्मल भाषा की बात करते हो तो एक्सेंट अलग हो जाता है, जी. ब्रिटिश एक्सेंट में या अमेरिकन एक्सेंट में या जो इंडियन लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, जी. बट साइन लैंग्वेज में क्या फ़र्क हो जाता है? इंडियन साइन लैंग्वेज दोनों हाथों से की जाती है. अमेरिकन साइन लैंग्वेज और ब्रिटिश साइन लैंग्वेज आप एक हाथ से कर सकते हो. ठीक है. जैसे अगर इंडियन साइन लैंग्वेज में ए ये होता है, ठीक है. ओके. अमेरिकन साइन लैंग्वेज में ए ये हो जाता है. Okay, and you can do it with one hand. One hand. When you talk to someone who's deaf and mute and who's from India, if you actually try to interact with that person with one hand, he'll ask you to use both the hands because he's used to with that gesture or she's used to with that gesture. Whereas an American will always find it very easy to interact with One hand. or a British would find it easier to interact with one. So yeah, that's the basic difference that I can say. That all the three languages have. क्या क्या आ रहा है अपकमिंग में? जैसे आपने एक फिल्म का जिक्र किया दैट यू आर प्लेइंग द लीड रोल, तो उसके बारे में बात करने की इजाजत है या अभी नहीं है? एनडीए वगैरह है कुछ? एनडीए है डेफिनेटली, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि इतनी मजेदार फिल्म है और इसमें आपको वो सब करना देखने मिलेगा जो मैंने नहीं किया है इस फिल्म में. डिटेक्टिव में मैंने सिर्फ एक्टिंग की है, ठीक है. ना मैंने बॉडी बताई है, ना मैंने डांस किया है, ना मैंने गाना गाया और ना ही मैंने हीरोगिरी की है, ठीक है. इस फिल्म में मैंने सब कुछ किया. So that's the max I can say. And I think you'll really love this film. And the best part is that I'm collaborating with the same director who I collaborated with on Detective. Mr. Ravi Chhabria is the same director who I'm going to be collaborating with on this film also. So yeah, I'm very very excited. In fact, we are done with the film. We are just left with 6 days of filming more. Wow. So I can't wait for the world to see what's next in store for them from my end and my directors. जहाँ पे हीरोपंती की है, जहाँ पे गाना गाया है, वहाँ पे सामने कौन है? हीरोइन कौन है उसमें? नहीं, वो सब मैं नहीं बता सकता. I can say hero मैं हूँ. चलेगा. Thank you so much for the time, Arjun, and all the very best for upcoming projects. वो आए, हम दोबारा बैठते हैं, फिर बात करेंगे. Absolutely. Thank you so much. Oh. I said nice to meet you. I would like you to actually learn this, okay? I will learn it. Nice to meet you. You. Okay? Nice to meet you. Great. Thank you so much. It was so nice meeting you. Nice meeting you too, sir.